So today actually I am on leave, but doing it from home. But we'll continue. So just to recapitulate that last class we had discussed about these two major characteristics of sampling: representativeness, and the other is adequacy. So these two must be filled in when we select a sample from the population. Then we move towards the technique of sampling. This one, which you see in the screen, that is the probability design and non-probability design. So let me make it soon. So these two major characteristics. And then moreover, this from probability sampling design, which has randomness as a key characteristics, and non-probability sampling design, it is the judgment. So these two words you must keep in mind, that randomness in probability sampling design and judgment in non-probability sampling design. Then further we discuss about simple random sampling, which is possible through your lottery method or yes. Okay. Now we'll continue with the second technique under probability design. Under probability design, the first technique is your simple random sampling. Then comes your systematic sampling. So systematic sampling, it is little more representative than simple random sampling, where you can say that the process is systematic. In this case, we'll see how it happens in this case. Like what you do, here also you need a sampling frame, mean the list of units in the population. It can be anything. You can be arranged in alphabetical order, house number, seniority from lower to bottom or bottom to senior. So this way you need for listing. Then you decide what is the number of population and the unit that they want to select. Suppose we want to select 100 persons from 1000. Then the unit will be your 10. When you divide, it will be 10. So then what we'll do, from the 1000, select anyone randomly, one number, anyone randomly. It can come anything. It can come 6, it can come 8, it can come 859. Any number can come. So from there, go on adding every 10th element, which will be your sample. You can take that. So if the first number is, say for example, random number come 5, then the sample will be every 10th of the 5. So 15, then 25, then 35 till 995 items. So this way it will continue. And then you need, wherever you close 100, क्योंकि 1000 में से 100 लेना है, तो 100 जहां पे पूरी हो जाएगी वहां आपका सैंपलिंग स्टॉप हो जाएगी. आप लॉटरी मेथड यूज कर सकते हो या फिर उसका टेबल ऑफ रैंडम नंबर. आखिरी में देखेंगे हम टेबल ऑफ रैंडम नंबर से कैसे सिलेक्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकंड टेक्निक. और क्योंकि ये एवरी इंटरवल पे होती है, इसके नाम भी कभी कभी हम बोलते हैं सैंपलिंग बाय रेगुलर इंटरवल या सैंपलिंग बाय फिक्स्ड इंटरवल्स. उसका एडवांटेज ये है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में कहीं पे भी आ सकता है, बट इसमें एवरी 10th, एवरी 5 जो भी आ रहा है, एवरी 15, तो उससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है, फेयर रिप्रेजेंटेशन. सो दैट इज योर एडवांटेज इन systematic sampling compared to simple random sampling.
So this is the second technique. Then we move to the third one, stratified random sampling. So stratified, I mean, first we have to understand what a strata means. Strata means layer or a group, cluster. So in a group, we can, the group can be formed or group can be available automatically. I mean, already available. So from that you can take the strata. So stratifying the main population into number of subpopulations, each of which is homogeneous with respect to one or more characteristics, and then to select randomly the required number of cases from each population. So let us say the state of Haryana. So very easily the strata are, you can say, district. So there are 22 districts in Haryana. So if you take something from each district, then automatically you will get a sample. So strata, then within district there can be strata, will be your blocks, different blocks. If you want to go further, then it will be within a block, panchayats. So each of these will be a strata. Now we can select from many more strata and substratas, or simply at least one. If you want a population from Haryana, you selected, say, 100 from all the 22 districts, and the sample becomes 2,200. Then that is a stratified random sampling. But from each district, you can say that you can randomly select from 2 blocks, and then 100 each, so 50-50. Then that is also stratified random sampling. That is much more representative actually. But many a time, so much division and this is not possible. But unless at least one strata is used, you cannot call it a stratified random sampling. So at least एक strata जरूर होना चाहिए, एक दो भी करते हैं. और जब हम different strata से यूज करते हैं, तो फिर वो एक सैम्पलिंग डिजाइन जो हमने पढ़े हैं, वो एक फिक्सचर फ्लो चार्ट पे हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं उसको. So that is stratified random sampling. You can check this, that decide upon strata किस basis पे कर सकते हैं. Relevant stratification like gender or sex, residence, rural urban, age, adult, non-adult, children, adult, aged, courses of studies, art, science, commerce, engineering, technology, pharmaceuticals. So बहुत सारे चीजें स्टार्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ स्टडी. और जैसे स्टार्टा एक डिस्ट्रिक्ट पे लिया, फॉर एग्जांपल जैसे सेम एग्जांपल 100 हर एक डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा से, आप फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 100 में से 50 मेल 50 फीमेल, वो भी एक स्ट्राटा है. सो बहुत सारे हम उसमें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग से स्ट्राटा यूज कर सकते हैं. Then divide the entire population in subpopulation based on the stratification criteria. तो वो अवेलेबल होता है, नॉर्मली जो अवेलेबल स्ट्राटा है हम उसको मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं. तो स्ट्रैटिफिकेशन का क्राइटेरिया जब करोगे तो सिंपल रैंडम में वो पॉपुलेशन का डाटा मिल जाएगा सेंसस रिपोर्ट से. Then list of the units separately in each subpopulation. वही जो डाटा लेना है कितने हैं उसमें. हाँ, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे होमोजीनियस है, तो एक स्टेट का है तो कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स में डेफिनेटली होमोजीनियस हो. फास्ट, सबको हिंदी पढ़ने आता होगा, मदर टंग हिंदी है मोर और लेस सबको. फिर उनके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम हो सकता है, नेचर हो सकता है, फैमिली टाइप भी पर्टिकुलर हो सकता है. तो कहीं ना कहीं जब लेते हैं कुछ होमोजिनिटी होता है, वो कुछ हेट्रोजिनिटी भी होगा, बट डजंट मैटर हेट्रोजिनिटी या होमोजिनिटी. फिर जब हम सैंपल करेंगे रैंडमली, वो होमोजिनिटी भी आएगी, हेट्रोजिनिटी भी आएगी, तो अल्टीमेटली यू आर रिप्रेजेंटिंग ए सैंपल. ठीक है, तो इट हैज मोर रिप्रेजेंटेशन. देन सिलेक्ट द रिक्विजाइट नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम
इच सब पॉपुलेशन। जैसे 100 मैंने बोला, फिर 50-50 मेल फीमेल ले सकते हो, या फिर 2 ब्लॉक सिलेक्ट करके। बट इसमें इसकी फीचर ये है कि जो सिलेक्ट करते हैं दैट शुड बी रैंडम। अगर हम 100 ले रहे हैं तो 100 रैंडम से लेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट से। फिर 100 हर एक डिस्ट्रिक्ट से अगर हम मेल 50 ले रहे हैं, फीमेल 50 ले रहे हैं, वो भी रैंडम से होगा। तो एवरी टाइम यू नीड टू हैव द लॉटरी मेथड, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा। तो बेस्ट इज यूज फॉर टेबल ऑफ रैंडम नंबर। और आजकल वो सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, यू कैन पिक अप फ्रॉम सॉफ्टवेयर से हो जाती है रैंडम सिलेक्शन। नाउ फिर जो डिफरेंट स्ट्राटा से जो हम डिराइव करते हैं, टुगेदर द मेक द फुल सैंपल। 100 ईच फ्रॉम 22 डिस्ट्रिक्ट, तो सैंपल हो गया 2200 इन हरियाणा। तो इट बिकम्स द फाइनल सैंपल। लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर गया उसमें, एडवांस डिस्ट्रिक्ट और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। एग्रीकल्चरली एडवांस डिस्ट्रिक्ट करनाल, सोनीपत, पानीपत, जींद, वो भी हो गया। और एजुकेशनली एडवांस डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, वो एडवांस्ड हैं, गुड़गांव, वो भी हो गया। थोड़ा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है एजुकेशनली पलवल, वो भी हो गया। सो लाइक दैट यू गेट द रिप्रेजेंटेशन। तो यही तो है उसका तो खासियत, जो रिप्रेजेंटेटिवनेस। और फिर एडेक्वेसी नंबर एक स्टडी के लिए। अगर बहुत बड़ा वो कर रहे हैं सर्वे टाइप, तो यू कैन गो फॉर मोर ऑल्सो। जैसे मैंने 2200 बताया, you can go for more also. So this is how the stratified random sampling. Then we move to another technique of random sampling, cluster sampling. तो cluster mean groups, जैसे स्ट्राटा में एक ग्रुप है, ये cluster mean groups। डिफरेंस ये है कि इसमें इट्स लाइक ए स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम एक यूनिट को इंडिविजुअल नहीं सिलेक्ट करके एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, तभी उसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। लाइक it involves division of population under consideration into groups or clusters, which is the primary sampling unit। जैसे हरियाणा में हमने मेल फीमेल चिल्ड्रेन एज्ड, उनको एज इंडिविजुअल किया। बट इस केस में क्या होगा, आपका जो सैम्पलिंग यूनिट है, या तो कोई यूनिट होगा, ब्लॉक होगा पूरा का पूरा, या फिर कोई स्कूल होगा, एक हॉस्पिटल हुआ, एक हेल्थ सेंटर हुआ, जो पॉलिटेक्निक हो गया, या फिर रेडियो स्टेशन हो गया। तो कोई भी चीज होता है तो उसके अंदर फिर कोई एम्प्लॉइज होते हैं, काम करते। तो ये यूनिट हो गया, स्पोर्ट्स सेंटर हो गया, स्टेडियम्स हो गया, बहुत सारे हैं जो अवेलेबल होते हैं। तो हम जो है पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं इसमें, एंड दैट टू रैंडमली। तो इन क्लस्टर सैम्पलिंग द सैम्पलिंग यूनिट कंटेन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, क्लस्टर्स, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स और आइटम ऑफ पॉपुलेशन। नहीं तो उसमें आप सिंपल रैंडम मेथड पे लो या स्ट्रैटिफाइड रैंडम, बट उसकी जो डिफरेंट है अदर देन सैम्पलिंग, इसमें हम एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं रादर देन इंडिविजुअल। ग्रुप इसमें यूनिट है, यूनिट ऑफ सैंपल इज ए ग्रुप, इन अदर केस इट इज यूनिट ऑफ सैंपल इज इंडिविजुअल। लाइक सी दिस एग्जाम्पल, फॉर सिलेक्टिंग 10% सैंपल ऑफ बीबीए स्टूडेंट्स इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। हम कोई कॉलेज जाके बीबीए का उसमें ले सकते हैं स्टूडेंट्स को, 2, 3, 5 कॉलेज जाके ऑन रैंडम मेथड। बट इन दिस केस 10% सैंपल बीबीए स्टूडेंट्स लेना है, तो हम क्या करेंगे उसमें, डिफरेंट मैनेजमेंट कॉलेज हैविंग बीबीए करो। कहीं पे नहीं भी हो सकता है, बट जहाँ पे जिस कॉलेज में बीबीए प्रोग्राम है वहाँ पे गए और सिलेक्ट रैंडमली 10% ऑफ द सैंपल स्कूल्स से। फॉर एग्जाम्पल 50 कॉलेज है हरियाणा में, ज़्यादा होगा, 150 कॉलेज है मैनेजमेंट कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल 150 कॉलेज, तो उनके 10% कॉलेज जो 15। तो हमने क्या किया, रैंडमली लिस्ट तो मिल जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ हरियाणा से, हायर एजुकेशन से, तो वहाँ पूरे लिस्ट ले लिया 150 मैनेजमेंट कॉलेज का, उनमें से 10% ले लिया। 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, ज़्यादा है तो 5%।
कम है तो 20% ले सकते हो, जो भी डिसाइड करो उसका। देन हम वो 10% बीबीए स्टूडेंट्स को नहीं लेके हमने क्या किया, 10% बीबीए जो कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज, वो ले लिया। उसमें कोई भी कॉलेज आ जाएगा, हो सकता है पानीपत का आ गया, उधर महेंद्रगढ़ का आ गया, उधर कैथल का आ गया, कोई भी आ गया ऐसे। तो जो 10 कॉलेज जो आ गए वो हो गए हमारे सैंपलिंग। तो एक्चुअल सैंपल कौन हो गया? कॉलेज नहीं, बीबीए स्टूडेंट। तो जिनके कॉलेज में जो स्टूडेंट आ गए, पानीपत के कॉलेज में जो स्टूडेंट आ गए, वो सारे हमारा टोटालिटी सारे बच्चे उनका आपका सैंपल हो गए। तो अगर आपने मान लिया कि मैंने 1500 सैंपल लेना था, तो हो सकता है वो 1700 हो गया, या हो सकता है वो 1350 हो गया, डजंट मैटर। बट आपने एडॉप्ट किया क्लस्टर सैंपलिंग, दैट इज परफेक्टली फाइन। फिर सिनॉप्सिस में ये लिखते हो कि क्लस्टर सैंपलिंग विल बी यूज्ड एंड अप्रोक्सीमेटली 1500। लेकिन थीसिस में क्या होगा? आपका 1350 यूज हुआ था या 1371 हुआ था, तो भी वो वही लिखोगे। तो इसमें मैचिंग की चांसेस जो है कम है कि एग्जैक्टली वही मिलेगा, बट अल्टीमेटली यू हैव ए वेरी गुड फेयर सैंपल उसमें। सेकेंडली ये इजी है, आप कॉलेज को लिए, पूरे कॉलेज पे गए, वहां डाटा कलेक्ट कर लिया क्लस्टर सैंपलिंग में। तो दैट वे इट इज कन्वीनियंट इन क्लस्टर सैंपलिंग। बट नाउ जो कॉलेज हमने सिलेक्ट किया, दैट विल बी अगेन थ्रू रैंडम मेथड। तो रिमेंबर दिस, दैट जो भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिलेक्ट करेगो, हर एक में जो सिलेक्शन होगा वो रैंडम होगा। तो 1500 कॉलेज में जो 10% लिया वो भी रैंडम होगा उसमें। मीन 10% 15 हुआ, तो 1500 कॉलेज का लिस्ट में से रैंडमली सिलेक्ट करो, लॉटरी मेथड या फिर वो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स और बाय सॉफ्टवेयर। So this way it is the cluster sampling. So these are the four major techniques of probability sampling. अभी इसका एक नाम भी है, क्लस्टर सैंपलिंग को हम कभी कभी एरिया सैंपलिंग बोलते हैं, क्योंकि एक एरिया को लेते हैं, उसको चुनते हैं रादर देन इंडिविजुअल। क्योंकि इन डिफरेंट बुक ना, द रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंस, रिसर्च मेथड इन बिहेवियरल साइंस, रिसर्च मेथड इन से बेसिक साइंस, तो अलग अलग नेम मिलेंगे, है वही चीज होता है। जैसे सोशियोलॉजी में उसको बोलेंगे एरिया सैंपलिंग, साइकोलॉजी में से कन्वीनियंट सैंपलिंग है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी में, वहां हमें फार्मेसी स्टूडेंट पे कोई स्टडी करना है, तो हम बस अवेलेबल हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट, उनको लेके कर लिया, मिल गए मेरे को, हो गया, जस्ट बाय इंसिडेंट हो गया। बट उसके पास और एक भी कॉलेज है, तो वहां से फॉर एग्जांपल मुझे उस कॉलेज से लेना है से, बट वो आपके पास है, कन्वीनियंस है, इजीली अप्रोचेबल, मुझे दोबारा आना की जरूरत नहीं है, जब कॉलेज के हो जाऊंगा उसी टाइम में जाके आ जाऊंगा, मुझे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है उस कॉलेज के लिए जाने के लिए, कन्वीनियंस है। तो ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग है इंसिडेंटल एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो incidental sampling generally used when the groups are easily and readily obtainable, और convenience वो कोई आपको तकलीफ नहीं है, आसपास में मिल रहा है, और तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग है दोनों कंसेप्ट में। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि टीचर ऑफ बी फार्म में अंडरटेक ए स्टडी यूजिंग स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बी फार्मा क्लास एज ए सैंपल, इट इज इजीली एंड रेडीली अवेलेबल। सो इसमें फिर जजमेंट क्या यूज हुआ? जजमेंट ये हुआ कि मेरे जो नेचर ऑफ स्टडी है इसमें ये हो सकता है ऐसा, और ये पार्टिकुलरली इंसिडेंटल सैम्पलिंग काफी हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है,
तो उसमें हम यूज करते हैं उसको एक्शन रिसर्च का। सो इट डजंट मीन कि इसके यूज नहीं होते हैं इंसिडेंटल सैम्पलिंग। या फिर कोई पायलट स्टडी किया एक छोटा सा, तो वो भी कर सकते हो, टूल्स डेवलपमेंट। तो पायलट स्टडी में भी सैंपल यूज कर रहे हो, तो इंसिडेंटल सैम्पलिंग कैन गो। एक पायलट स्टडी जो कि आपका फाइनल वो नहीं है, तो उसके लिए अलग डिस्ट्रिक्ट या वहां पे क्यों जाना है, वो एक जो लोकली अवेलेबल है वहां ले लिए। बट इंसिडेंटल सैम्पलिंग है सबसे वीकेस्ट सैम्पल। तो आप पीएचडी में अगर इंसिडेंटल लोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी क्वेश्चनेबल। आपको पूछेगा क्या, इंसिडेंटल सैम्पलिंग कन्वीनियंट सैम्पलिंग में आपने क्यों लिया, किस चीज को, ये कैसे आपके फाइंडिंग्स रिलायबल हो। बट इट हैज इट्स ओन यूज, जैसे मैंने एक्शन रिसर्च का बताया ऐसा। या फिर सैंपल ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको मिलते नहीं है, उस केस में, या वो फिर डिफर नहीं करेगा कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्ट म्यूजियम, आपका सैंपल है आर्ट म्यूजियम करना है। आर्ट म्यूजियम कितने हैं, कम होते हैं। तो आर्ट म्यूजियम की जो है वहां मुझे, मैं जो ये जो लोकल टाउन में या सिटी में अवेलेबल है वो ले लिया तो भी चल जाएगा। हर एक सिटी में होता भी नहीं है, तो वहां से ले लिया। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन योर नेचर ऑफ स्टडी एंड हाउ यू जस्टिफाई इट। बट इट्स एन वीक सैंपल है, ये एक वीक सैंपल है, बट इट्स अगेन यूजेबल डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द स्टडी। Okay, so this is one technique. Then under this purposive sampling, under non-probability, purposive sampling is one of the very good sample. आप फिर स्टडी में यूज कर सकते हो बाय जस्टिफाइंग। तो पर्पसिव सैम्पलिंग मीन पर्पस, कि जो जजमेंट है, मेरा जो जजमेंट है ऐसा नहीं है, सोच समझ के मैंने ये ले रहा हूं, ये है पर्पस। मीन देयर इज पर्पस बिहाइंड इट, कि मैं इसको क्यों सिलेक्ट किया, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया। So there is no bias in it, but there is a purpose behind it. That is your purposive sampling. Like chosen purposively because in the light of available information, these mirror some larger group with reference to one or more given characteristics. For example, same example, 22 districts in हरियाणा, उनमें से मैं एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूं जो कि हरियाणा को रिप्रेजेंट करें। कोई रैंडम नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे सिलेक्ट करें मैं। और मैं से लेता हूं गुड़गांव में, मैं गुड़गांव ले लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं रहता हूं यहाँ पे ले लेता हूं, मुझे इजी होगा, खर्चे भी नहीं होगा। तो वो पर्पसिव नहीं हुआ, क्योंकि मैं रहता हूं, क्योंकि गुड़गांव रिप्रेजेंट करता है क्या हरियाणा को, नहीं, वो तो एक एडवांस डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है हरियाणा पे, बिकॉज इट इज एन मिलेनियम सिटी और उसके ज्यादा अर्बनाइज्ड वो है, दिल्ली के पास है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करा, नहीं, उसको आपने नहीं सिलेक्ट किया। फिर वहां ले लिया कोई चंडीगढ़ के पास का, वो भी नहीं होगा। या करनाल ले लूं, वो तो रिच है इन एग्रीकल्चर। महेंद्रगढ़ ले लूं, वो तो बहुत दूर है, बैकवर्ड है। तो ये सब दिमाग लगाना है इसमें, ये होता है पर्पसिव सैम्पलिंग। तो फिर रिप्रेजेंट कौन करेगा, ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट लो जो कि ना बैकवर्ड है ना फॉरवर्ड है, बट एक मीट पे आता है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम तो मुश्किल है वो, बट वो जैसे जो हरियाणा में सबसे, और दूसरा एक इसमें मैंने एडवांस इसका बोला है। फिर छोटा बड़ा डिस्ट्रिक्ट मैं अगर ले लिया, सिरसा डिस्ट्रिक्ट वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, फरीदाबाद। तो मैं छोटा क्यों ले लूं, बड़ा के ले लूं उसको, तो वो भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फिर मिडिल में ले लो कोई। तो मैंने सोचा कि आई थिंक, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है एजुकेशनली, और थोड़ा पीछे भी है, और एट द सेम टाइम बैकवर्ड भी नहीं है। मैं जिंद डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ।
या कैथल ले लेता हूं, आउट ऑफ 22 डिस्ट्रिक्ट, ये मेरे को हरियाणा का जो एक रियल जो पूरा रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है। ऐसे आपको ये भी देखना है कि वहां हरियाणवी पॉपुलेशन है। तो ये जो हम ये सोच के हमारा पर्पस, ये मेरे पर्पस की रिसर्च को सॉल्व करता है, देन इट बिकम्स ए पर्पसिव सैंपलिंग। ठीक है, द कंट्रोल्स मींस इसमें जो हम देखते हैं, जो मैंने बताया, जैसे रिप्रेजेंटेटिव एरियाज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, कौन से मेरे को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस। अगर हम गुड़गांव सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तो बाहर के आदमी ज्यादा है, तो कहाँ हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे। देन टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, अगर डिपेंडिंग अपॉन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, एडिटर्स ऑफ डेलीज, हाउस वाइफ, विजिटर्स टू रिलीजियस श्राइन, जो भी आप कर रहे हो, किसके ऊपर सैम्पलिंग कर रहे हो, कहाँ पे वो प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो देखना है। फॉर लेट अस से वन मोर एग्जांपल, विजिटर्स टू ए रिलीजियस श्राइन, आपके सैंपल ये हरियाणा में, तो फिर क्या करोगे दिमाग में, कहाँ पे ये मिलेंगे ज्यादा, हरियाणा में कहाँ पे मिलेंगे रिलीजियस श्राइन, कुरुक्षेत्र, वहां तो वो है भगवत गीता का, वो कुरुक्षेत्र बहुत सारे टेम्पल्स हैं और वो हैं, मुझे शायद वहां ज्यादा मिलेंगे। तो और लोग जाते भी, बाहर से भी आते हैं ना एज ए टूरिस्ट प्लेस। तो मैं भी तब जब मेरा सैंपल ये है, मैं उसको कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर, दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि आपका वहां वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये पर्पस भी देखना है कि आपकी नेचर ऑफ स्टडी क्या बोल रहा है और कहाँ पे वो फुलफिल हो रहा है। वहां वो बैकवर्ड, कुरुक्षेत्र ये है फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आपका पर्पस वहां बैकवर्ड फॉरवर्ड का नहीं है, पर्पस है रिलीजियस श्राइन। तो व्हेन यू सिलेक्ट कि ये डिस्ट्रिक्ट मेरे को ज्यादा सैंपल मिलेंगे इसमें, विजिटर्स टू रिलीजियस श्राइन, परफेक्टली फाइन। आप जाके वहां ज्योतिसर में वहां रह जाओगे 2 दिन, बहुत सारे मिलेंगे उसमें लोगों की, बाहर की ये की भी, और वो क्योंकि एक लोकलाइज में हो सकता है कि ओनली हरियाणा के विजिटर्स मिलेंगे, बट ऐसे जगह पे हर एक जगह आते हैं, एवरीडे आते हैं वहाँ। सो दिस वे we decide purposive sampling. Clear? So then move to the next, quota sampling. Quota, again quota means group, एक कोटा। तो ये इसमें ज्यादा समझ आने की जरूरत नहीं है, ये एज गुड एज आपकी क्लस्टर सैंपलिंग जो डिस्कस किया है, इसमें भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। द डिफरेंस ये है कि कोटा सैंपलिंग में हम एक पार्टिकुलर ग्रुप को लेते हैं रादर देन इंडिविजुअल, जैसे क्लस्टर में। बट क्लस्टर में क्या करते हैं, रेंडमली लेते हैं, बट इस बेस में नॉन रेंडमली, आपकी जजमेंट पे कोटा डिसाइड करना है। सो हियर ऑल्सो अदरवाइज सैंपल ऑफ यूनिट इज ए ग्रुप, लाइक सिलेक्शन ऑफ सैंपल विद इन ईच स्ट्राटा और कोटा on the basis of judgment of the interviewer rather than on calculable chance of being included. Like in this case, once the general breakdown of sample is decided कि हम कितने हर एक में बनाओगे ना कि सेम 22 डिस्ट्रिक्ट्स और 50 men 50 women for example, then how many in each group to be included, the quota assignments are allocated to interviewers. उसके बाद कोई सर्वे कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो फिर इनको बोलना है क्योंकि यहाँ नॉन रैंडम है, से आपने 5 इंटरव्यूअर्स एंगेज किया है और 50 मेल 50 फीमेल को सिलेक्ट करना है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो 5 जगहों को 5 एरिया पे भेज दो। तो एक पर्सन को भेज दिया चंडीगढ़ एरिया में, तो उनको बोल देना कि 50 मेल और 50 फीमेल वहाँ डाटा कलेक्ट कर लेना, अम्बाला से
और वो उस एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का 5 एरिया, ठीक है। तो वो इंटरव्यू को बोलना कि जहाँ पे 50 मेल आपने कर दिया, तो हो सकता है आप उसमें चिल्ड्रन है या नहीं है। अगर चिल्ड्रन है तो भी कर सकते हो, नहीं है तो फिर वो एडल्ट, वो आपको स्पेसिफिकेशन बताना है। जहां पे 50 पूरी हो जाएंगी वहां खत्म। फिर जहां पे 50 ओमेन हो जाएंगे वहां खत्म हो गया। फिर अम्बाला से आगे फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, 50-50 खत्म हो गया, अगले डिस्ट्रिक्ट पे गया, वहां पे फिर 50 में 50, तो कोटा पूरी हो गई ना उधर। तो जहां पे कोटा पूरी हो गया वहां खत्म हो गया। तो ऐसे 22 डिस्ट्रिक्ट से जब 100 आ जाएंगे मेल एंड फीमेल, 2200 आपका सैंपल हो गया। तो वहां अपनी मर्जी से इंटरव्यूअर ने सिलेक्ट किया, जो मिल गया या जिसको देखा कि ठीक है। ऐसा भी हो सकता नहीं किसी को मिला बट वो बता नहीं पा रहा है और वो है, तो अगले पर्सन को चला गया। दैट्स अगेन पर्पसिवली जजमेंट। तो ये हो गया अपना कोटा सैंपलिंग, वेयर वी सिलेक्ट ऑन जजमेंट बेसिस, नॉन रैंडम बेसिस। तो ये है उसके, तभी इसको भी हम बोलते हैं इट्स ए मेथड ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इन विच द सिलेक्शन विद इन स्ट्रैटा इज नॉन रैंडम। तो लाइक इट इज लाइक ए स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इंडिविजुअली, बट ये मेथोडोलॉजी जो है वो नॉन रैंडम है इन दिस केस। रिलेटिवली कोटा सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम से इजी है, क्योंकि आपको रैंडम नहीं करना है उसमें, बट इट्स ए वीकर सैंपल देन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल। So this is the quota sampling. Then sequential sampling. Sequence means in particular order. Sequence is particular order. तो इसमें क्या होता है, नॉन रैंडम मेथड है, बट हम एक पार्टिकुलर सीक्वेंस पे जाते हैं सिलेक्ट करने के लिए फॉर सम पर्पस। सो देयरफॉर इट इज अगेन some judgment. So therefore it is sequential sampling. For example, you can see this. In this design, sampling is continued until a significant result on which the base decision is obtained. कोई एक रिजल्ट आने तक हम आगे चलते रहते हैं एक सीक्वेंस में। एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये, जैसे इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट ए स्टडी ऑन 400 केसेस एट वन गो, आपका प्लानिंग है 100 का सैंपल लेना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्पस है रिसर्च वो पहले 100 ले लेने में पूरी हो रहा है। इट माई बी एडवाइज टू कैरी आउट फॉर इंस्टेंस ए 4 स्टेज सैंपलिंग। पहले 100 कर लें, रिजल्ट देख लें, फिर नहीं लगा सेटिस्फैक्ट्री, अनदर 100 ले लिया, फिर अनदर 100 ले लिया, फिर 400 ले लिया, बेस्ड ऑन आवर ओन जजमेंट। सो दैट इज सिक्वेंशियल सैंपलिंग। लेकिन ऐसा कहाँ पे होता है, वो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड या फिर मेडिकल साइंस में ये यूजफुल होता है। सी दिस एग्जाम्पल, लाइक सपोज a manufacturer wants to test the life expectancy of a new bulb, placing it on the market. बल्ब की लॉन्जेटिविटी को टेस्ट करना चाहता है कि क्योंकि गारंटी डिसाइड होता है ना। आजकल आप एक एलईडी बल्ब खरीदने जाओगे तो उसको कितना गारंटी मिलता है, उसको लिख के देता है ऊपर 1 साल का गारंटी, कोई भी कंपनी का ले लो। तो किस बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 साल का गारंटी? ऐसा थोड़ी रैंडमली कर दिया हो, उन्होंने रिसर्च किया है कि टेस्ट करते हुए कि 1 साल तक वो ड्यूरेबल है, चलता है वो, बेस्ड ऑन सैंपल। तो ऐसे स्टडी में हो सकता है कि स्टेज वाइज सैंपलिंग हो सकता है, लाइक बिफोर, सिंस द टेस्टिंग ऑफ द बल्ब विल इंप्लाई इट्स डिस्ट्रक्शन। वो हो सकता है कि 1 साल तक वेट किया या फिर पावर कम ज्यादा करके किया, फ्लक्चुएशन से किया, एंड देन उसके बाद वो करता है कि इसमें पाया गया होगा कि 95% ऑफ द बल्ब जो है वो 1 साल से ज्यादा चलते हैं, तब उनको माला कि वो फाइन।
रिमेनिंग 5%, क्योंकि ये बेस्ड है अगेन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो ना 5% कोई टूट भी गया, पहले भी हो गया, तो आप उसमें पूरा रिप्लेसमेंट हो जाता है। आप दुकान पे लाओ, उसमें डेट लिखा रहता है, और सच में दुकान वाला कर देता है उसको रिप्लेस विदाउट आस्किंग यू एनीथिंग, क्योंकि उसको क्या है, वो जो अगले बार होगा वो दे के नया आ जाएगा उसके पास। बट दिस इज ऑल्सो इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च। तो उससे पहले 100 का टेस्ट किया, उसके बेसिस पे जो भी किया, नहीं तो क्या होगा, बस बॉल वेस्ट भी तो होगा वो। फिर उसके लगा कि रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, डिपेंडेबल, फिर 200 पे किया, फिर 300 पे किया, फिर 400 पे किया। 400 में कहीं ना कहीं तो लगेगा उसको कि वो रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है। वो 400 में से 395 ही है जो बिल्कुल सस्टेन कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा चल रहे हैं, फिर वो 1 साल का गारंटी देके मार्केट में सेल करता है वो। तो सिग्निफिकेंटली सुपीरियर और इंफीरियर कन्वेंशनल बॉल वो डिसाइड अपॉन टेस्टिंग फॉर टू स्टॉप इंस्टेंट। सिमिलर एग्जांपल आपका जो कार की है, कार मार्केट में जो होता है ना उसका रेसिस्टेंस, और वो कि एक्सीडेंट में वो कितने वो होता है, वो तो बिल्कुल कार जो बनाया हुआ है वो चलाते हैं लेवल की उसको, तो कितने कार वो डिस्ट्रॉय करेंगे, 400 500 कार तो डिस्ट्रॉय कोई भी कंपनी नहीं करेगा। वहां तो सैंपल ये भी होगा कि 10 का करता हूँ, 5 का करता हूँ। तो उस केस में सिक्वेंशियल सैंपलिंग यूज होते हैं उसमें। ज्यादातर एजुकेशनल रिसर्च बिहेवियरल इसमें तो कम होगी, बट देयर आर केस जो इंस्टेंसेस की जहां पे इस टाइप ऑफ रिसर्च हो सकते हैं सिक्वेंशियल सैंपलिंग। So this is another method. Here also it's a selection is non-random. So therefore we call it non-probability, falls under non-probability design. Now snowball sampling, snowball sampling. तो ये लास्ट है, इस लास्ट टेक्निक अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी 5, और उसके अंदर 4, टोटल 9 टेक्निक्स विल बी कवरिंग अंडर दिस। स्नोबॉल बॉल, बॉल कैसा था, फुटबॉल होता है, खेलते हैं, वो किक किया, वो उधर से किक किया, उधर से किया। स्नोबॉल स्नो में जो खेलते हैं। तो इसमें सैंपलिंग में क्या होता है, वो किक जैसे है, मतलब एक से दो, उधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे डायरेक्ट करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स इसको नेटवर्क सैंपलिंग भी बोलते हैं। सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल थ्रू नेटवर्क्स। ए फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन आर कंट्रैक्टेड एंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम देम। कुछ लोगों को हम कॉन्टैक्ट करते हैं और वहीं से फिर आगे जो बताते हैं वो आगे जाते हैं उसको। तो दैट इज कॉल्ड एज स्नोबॉल सैंपलिंग। The respondents further asked to tell other such people who know, which become part of the sample. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 500 सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हो, सिक्योरिटी गार्ड्स 500, तो आप देखोगे कि माइंड में, जजमेंट में, यहां से मुझे सिक्योरिटी गार्ड कहां पे मिलेंगे। तो अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, पहले तो आपके गेट पे मिल जाएगा सिक्योरिटी गार्ड, और वो भी एटलीस्ट 3 टर्न में 3 तो मिलेंगे ही इन डिफरेंट टर्न्स। तो हमने क्या किया, उस सिक्योरिटी गार्ड को गया उधर, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, ये करता हूँ और वो है, और मुझे ये फिल इन कराना है। अगर क्वेश्चन है तो हो सकता है आपने उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्वेश्चन नहीं बल्कि इंटरव्यू शेड्यूल किया, इंटरव्यू शेड्यूल में खुद भरोगे। तो उसको पूछा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बस रिसर्च के लिए और कुछ नहीं, मेरा हायर पढ़ाई है, तो आप थोड़ा मैं क्वेश्चन बताता हूँ, बता दें। तो वो आपने भर दिया उस सिक्योरिटी गार्ड की। उसके बाद बोला कि भाई थैंक यू, आपने मुझे वो किया। और उसके बाद बोला कि भैया बता सकते हो क्या इसके पास और कहाँ सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। वो बोल दिया वो अगले सोसाइटी में चले जाओ, वहाँ ज़्यादा बड़ा सोसाइटी है, ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। वहाँ गए, वहाँ से भी उसी लाइन पे कर दिया। वहाँ पे फिर थैंक किया, बोला कि और कहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। बोला कि वो पास में इंडस्ट्रियल टाउन है ना, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहां से तो आपको भरे पड़े मिलेंगे, वहां हर एक में मिलेंगे, आप वहां चले जाओ। भैया क्यों इधर इधर भटकते रहते हो, सीधे वहां पे जाओ, बस भरपूर मिलेगा।
तो वहां आप गए और देखा हर एक में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो हर एक जगह पे उसी तरीके से आपने कलेक्ट किया, क्योंकि मेथड नॉन रैंडम है, तो आपको रैंडम करना नहीं है, जो मिला उसको लिया करो। और 500 का सिक्योरिटी गार्ड जब आपने इंटरव्यू कर लिया ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 15 डेज, 2 महीने, जो भी है लगा, तो वो आपकी सैंपल हो गई 50, 500। फिर उसके ऊपर आप आगे डाटा एनालिसिस करो। तो ये है अपना स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये एक इजियर मेथड है और कैन बी एडप्टेड आल्सो इन डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द स्टडी। और जब तक हम डिजायर्ड सैंपल नंबर नहीं आते हम कंटिन्यू करते हैं उसको। ठीक है, तो नाउ वी हैव कवर्ड 9 टेक्निक्स, 4 अंडर प्रोबेबिलिटी, 5 अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इनमें से जो आपके रिसर्च में सुइटेबल है, यू विल टेक द सैंपल, क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम होगा कि किसी के स्टडी में फुल पॉपुलेशन स्टडी होगा। मोस्टली यू विल बी यूजिंग सैंपल ओनली। सो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द स्टडी यू डिसाइड व्हिच सैंपल यू आर यूजिंग। तो ऐसा नहीं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बुरा है, कहीं कहीं पे तो वही यूज होता है मेथड। द पॉइंट इज दैट इन एवरी सैंपल यू नीड टू जस्टिफाई। आपका कितने भी अच्छे सैंपल है, फिर भी आपको क्यों वो सिलेक्ट किया, हाउ यू सिलेक्टेड, एवरीथिंग शुड बी मेंटेन अंडर योर मेथोलॉजी चैप्टर, उसमें आएगा ही वो। So concluding, depending upon purpose and the nature of the study, particular sampling design can be selected. However, in some cases, it may be practically impossible to use probability sampling. उसमें possible ही नहीं है. So you need to draw sample non-probable only. For example, a sample of fish from the sea. समुद्र से आप कुछ मछली के ऊपर स्टडी करना चाहते हो, एक्वाटिक साइंस में या एग्रीकल्चर साइंस में, फिशरीज साइंस में, तो कैसे करोगे फिश के ऊपर? वो तो नॉन प्रोबेबिलिटी होगा ना, वो लिविंग फिश पे समुद्र से कर रहे हो स्टडी। सिमिलरली द क्वालिटी ऑफ सैंड, जो रेत होता है इन डिफरेंट रिवर बेसिन, वो करना चाहते हो, तो रैंडमली क्या करोगे उसको? तो समुद्र तो वो समुद्र है, इट विल बी नॉन, मे बी ये नॉन प्रोबेबिलिटी ओनली सैंड की। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर नेचर ऑफ द स्टडी। सेम विल बी वाइल्ड लाइफ फ्रॉम फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ फिर कितने, कभी कभी जो काउंट होते हैं वाइल्ड लाइफ की, कितने टाइगर हैं, कितने एलिफेंट है, वो भी एग्जैक्टली सही नहीं होता है, क्योंकि यू डोंट नो कि कहाँ पे हो, तो डिपेंडिंग अपन कहाँ पे ऑब्जर्वेशन वो करते हैं ना। वो जू का पॉसिबल है कि कितने हैं एग्जैक्ट, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो नहीं कर सकते हो, तो उनके ऊपर जो स्टडी करोगे और वो फिर वो वाइल्ड लाइफ वाला में आपका नॉन प्रोबेबिलिटी होगा। सो मेनी ए टाइम वी आर फोर्स्ड, या और ऑप्शन नहीं होता है, वी डिपेंड अपॉन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ओनली। दूसरा, sometimes although the sample may be designated as probability sampling, say randomly किया, yet the incompleteness of the responses due to refusal or non-cooperation of the respondents। हमने बहुत अच्छे तरीके से सैंपल सिलेक्ट किया, बट कभी कभी जो डेटा कलेक्शन में है वो उन्होंने जो चाहते थे कलेक्ट नहीं कर पाए, लोगों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, या इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स किया, या वो कोऑपरेट नहीं किया आफ्टर सेवरल परसुएशन, देन द क्वालिटी ऑफ रैंडमनेस जो आपने किया था, प्रिसिशन ऑफ सिलेक्टिंग, वो फिर फॉरफिट हो जाता है, लॉस हो जाता है उसका। तो एज गुड एज नॉन रैंडम मीन्स सी द लिंक, अच्छी तरह सैम्पलिंग सिलेक्ट किया, बट डाटा कलेक्शन में भी कोई मिस्टेक्स या कोई फ्लॉ आ गया फॉर एनी रीजन, तो भी ये फिर नॉन रैंडम सैंपल जैसे हो जाता है। तो ये जो फैक्टर है, ये
एक जन्म देता है एक मिस्टेक एरर को। सैंपलिंग प्रोसीजर में या फिर डेटा कलेक्शन में, आइदर वे इट गिव्स एन एरर, दैट इज नोन एज सैंपलिंग एरर। तो पर्पस हमारा होगा सैंपलिंग एरर को मिनिमाइज करना। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा वो रह जाता है, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। सो वी हैव कंप्लीटेड द सैंपलिंग टेक्निक, नाउ विल गो टू द सैंपलिंग एरर। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग ऑन दिस सैंपलिंग एरर? सॉरी, सैंपलिंग टेक्निक, कोई टेक्निक में यू कैन आस्क देन बिफोर वी मूव टू सैंपलिंग एरर। वो छोटा सा है सैंपलिंग एरर, अंडरस्टैंडिंग अबाउट सैंपलिंग एरर। क्लियर?